الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. Jazakallah khair for the beautiful recitation. This seminar series is named in honor of Dr. Karamuddin Khan Ghori, a respected mathematician and educator. The Ghori Alumni Series serves as a platform to connect our current students with distinguished who are now making impactful contribution across the globe. The aim is to inspire students, share academic and professional experiences, and build a strong academic network. Today, we are honored to have with us Dr. Umair Umer, an accomplished computational scientist, currently serving as postdoctoral researcher at Hokkaido University, Japan. Dr. Umair Umer holds a Ph.D. from Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, and specializes in quantum molecular dynamics and chemical reaction simulation. His research integrates numerical techniques, machine learning, and advanced modeling to understand complex chemical systems such as plasmon, enhanced catalysis, and SN2 reactions. Without further delay, I would now like to invite Dr. Umair Umer to begin his talk on his topic, Development of Accurate Variable Transformation Method for Molecular Quantum Dynamics Calculation. Over to you, Dr. Umair Umer. Assalamu alaikum. Thank you so much. Okay, introduction. Sir, if you do not have any objection, we will record our session. Yeah, sure. No issue. Okay. As she already introduced me and tell me about that I am the student of COMSATS from 2004 to 2008. Then I did my MS also from COMSATS and Ph.D. from the Chinese Academy of Sciences. Now I am working as a postdoc and PI at ICReDD, Hokkaido University, and also at WPI. So I also served COMSATS as a lecturer in the past. Now today I am going to present about development of accurate variable transformation method for molecular quantum dynamic calculations. So basically this presentation consists of the following table of contents. Number one is research background, then research work, summary, and conclusion. And last but not the least is the thank you for all of you, Dr. Suhail and the department for giving me a chance to present my work. So basically, research background is that this, this figure represents a molecular cross beam experiment, and it is used to detect
basically spin, velocity, and coupling effect when chemical reaction happens at the quantum level. So in this experiment, what happens? Usually we in our school and college we have studied about the reactions, different reactions. So how reaction happen from both sides of this experiment chamber. We throw some like atoms from here, and they react at this at the center region. Then their velocity change. Then the reaction happens. Actually, reaction happens here. So it change direction, angle, and so many things happen. This is the basics of quantum molecular dynamics, and this is a experimental work. So for this experimental work, we need to design some theoretical model that define this experimental work, so that we can connect the theory and experiment together. So in this, the purpose is that to study about the atoms at quantum level. So we know about their properties like spin, like translations, like their motion and every moment. So this molecular beam experiment is the base of quantum molecular dynamics study. So here's the, you can see in this a little figure, and here's a video of NO plus helium reaction that happened at the center of this molecular beam. So how it is changing its its product, it is spinning, it is vibrating, and it shows uh, change in its reaction probability. So through this we can detect this at molecular level, but actually this is not possible for all the reactions. And when we study the quantum molecular dynamics at quantum level, so computational Assalamu cost alaikum, is. Umair. Would you please hold for a minute because slides are not changing at my screen. I don't know what is the problem. सलमान बोल रहा हूँ. जी 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 अस्सलाम वालेकुम। बेटा बाकी किसी का is this the problem with me? The slides on my screen I have the first slide development in which we have the title. No, I am on the Yes, sir. research background. That's the first slide you show. Okay, all right. I don't know what's the issue. Can we have some technical support why this is happening? उमैर आपने जो है ये स्क्रीन शेयर सिर्फ पावर पॉइंट की हुई है कि कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन शेयर की हुई? माउस आपका मुझे आ रहा है नजर जो कि मूव कर रहा है विच इज मूविंग. हाँ माउस आ रहा है आपको? नहीं, मैं पावर पॉइंट ये शेयर किया है सर, मैंने पावर पॉइंट ये शेयर की है. आप क्लिक करेंगे सेकंड पे क्लिक करोगे स्लाइड पे, ये जो आपके लेफ्ट मोस्ट पे नजर आ रहा है टाइटल, और हाँ माउस आप उस तरफ ले जा रहे हैं. ठीक है, सेकंड स्लाइड पे क्लिक करो. ये मैं स्लाइड चेंज की है. नहीं देयर इज सम इशू एक्चुअली. उमैर आप देख रहे हो अपने कंप्यूटर पे सेकंड स्लाइड और थर्ड व्हाटएवर जो मैं भी थर्ड स्लाइड पे. हमारे पास जो है वो फर्स्ट ही स्लाइड जो है वो नजर आ रही है. आपने इसको स्क्रीन फुल स्क्रीन किया हुआ है? जी जी. मैं इसको दोबारा अब ये मूव हो गया. नाउ वी आर आल्सो एट द थर्ड स्लाइड. ये क्या किया आपने? ओके इट्स ऑलराइट नाउ. Yeah. You get the point? Okay, that's fine. Please continue. Okay. So I was discussing about this figure. This is basically for the molecular beam experiment figure, and it is used to detect about the reaction, the product that happen at the quantum level. So how atom and molecule, when they react, and how they change into the different products. So this region is basically used to determine the product. There are some techniques like it is called virtual WMI, management of image. There are some related names. So here they determine that where the product is moving in this region. And if we see this, the second figure, sir, is this clear?
Can you see the figures? Hello? Yes, 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 Okay, okay, okay. Umair. We Okay, can see. okay. Actually, we are Yes. on the, I think it's the third slide, same slide, in which you Oh, have four graphs. Okay. oh, yeah, yeah, Two yeah. graphs and two images. One is something like which you are explaining that what is happening Oh, here. yeah, yeah. Okay, okay. All right. Yes, 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 yes. Okay. 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 Please So continue. this is the image obtained from this experimental data. So that the reaction of nitrogen oxide and helium. So this is changing its direction. In this, we can see that how reaction is happening. And if we see, so this is very important in the quantum molecular dynamics. Actually, what is the purpose of this? The purpose of this is on the right side. On the left side, there are two figures. The first one is showing scattering angle. When this experiment is performed, very high scattering angle can be determined. Similarly, where for very low collision energy means there are some reaction. Like if the molecule are heavy molecules, then the reaction happens very slow. So the movement of that movement determination is very difficult. But recently, these are the most recent paper related to these experimental work. So they have shown that we can capture the high scattering angle and very low collision energy. But this is again experimental work, and some of them they have the theory where they try to like compare the theory and experimental work. So in theory and experimental work, both are agree with each other. But the problem is when we have a theory and it's computational task, it takes too much time. Like it takes 10 to 20 to 30 to 40, so many days in computational work. So it is very difficult even for the small three atoms reaction to determine the complete information about that reaction. So what we do actually, if now how we transform that into the form of mathematics, when we start a chemical reaction, we say that it has some uh, uh, energy. We give it some energy so that it moves through a certain path. This high hump is basically a transition state, a place where it changes from reactant to product. Sometimes reaction does not happen, it come back, sometimes happened, and sometimes all the atoms scattered. So so here are the different states, V1, 0, 1, 2, 3, and these states actually representing that for the different energy level, we get the different state. So for this product, this reaction is basically a laser reaction. In the laser power determination, this reaction is used. So here we see the different energy level. When we give initial energy level is different, the product will give us different uh, product state. So, so, so for these to describe this, actually here we see that we need some initial energy, and here we see that this point is very high. So this is an energy path. So we can say that every chemical reaction can be described through energy equation, and in that case we usually use the Schrödinger equation to describe the molecular quantum dynamics reactions. So there are two type of method. One is quantum scattering method. The other one is classical mechanics method. These are old, although they are very fast, but actually they have some very limitations. They cannot determine about the spin and other relation about the chemical reaction. So they are very rarely used in the modern quantum chemistry methods. So when we discuss about the time quantum reactor scattering method, there are two methods. One is time independent and another is time dependent method. The time independent method is actually have some limitation. It is only valid for three atom reaction. We cannot apply these method to 4, 5, 6, or the more number of atoms because there is a scaling limitation.
And when we discuss about the time-dependent method, we can apply it to more atom, 4, 5, 6. Even when we have like more than 6 atoms, it is very difficult to apply these method to perform the quantum calculations because uh, very high computational cost is required. So here is how time-dependent quantum wave packet method basically works. The requirements are that we need initial uh, if you understand about the molecular beam experiment, it means that we need a wave packet to carry the energy. So that wave packet is in the form of Gaussian, and here you see that there is a contour plot of the potential energy surface. So there's a channel where the reaction move. So we here have a reactant. It start moving in a channel and move toward the product. These two the red dashed lines are boundary conditions that we impose for the reactions. So with the passage of time, we need many time propagation. So for that propagation, we need a time evaluation operator and then boundary condition. In practical situation, it is very difficult to impose the boundary conditions. And the boundary condition quantum dynamics that are usually used are complex absorption potential. The modern one is transparent boundary condition. There are some other boundary conditions, but they are not working with the chemical reaction. So there is like very few boundary conditions that are valid for all the chemical reaction. Not all boundary conditions are valid for the chemical reaction. They can work mathematically, but they cannot work when we take practical reaction in consideration. So basically, if for the initial wave packet, we need grids, how we design our grids to propagate the initial wave packet, and then time propagation, as already told that this wave packet move with some energy. So when the energy of the wave packet is high, potential energy is very low. And when kinetic energy of the wave packet is low, potential energy is very high. So if we see in this figure, here, this region is like extra gridding. We don't need in the calculation. Due to this one, this region basically shows a high potential energy. So this one creates a problem and it is difficult like to perform quantum calculation in this high potential energy region. So this channel have only low potential energy, and in this low potential energy region, we perform quantum calculations. And then the boundary conditions and coordinate problem. The actual problem is coordinate problem on which I work. The coordinate problem start like reactant in Jacobi coordinate and product in Jacobi coordinate. Like if we see a pictorial form, and we see that, okay, this is a reaction A, B, and C, triatomic reaction. It is happening. This is a transition state. It has two different products like A and BC, and then B and AC. Similarly, this picture shows that here the blue circle is representing the uh, high transition state where no reaction happens, or sometime uh, all the atoms dissociate with each other. So basically, when reaction happens, there are three things. One is product, one is inclusion-induced dissociation, in which all the atoms got separated, and the another is no reaction. This initial molecule and atom, they come back to the initial state. So we need to consider these things during our calculation. And another problem is that if this channel become very long, we require very high number of grids. If this channel is very long, we require very high number of grid to perform the quantum calculation. So that is not feasible for still for the modern computer power. So actually, there are many coordinate systems that have been proposed. One of them is Jacobi coordinate. In recent past, about 10 to 15 years ago, this was mostly used by many scientists and the other chemists for describing the chemical reaction. But unfortunately, this Jacobi coordinate have many limitations. People work in this to propose different type of Jacobi coordinate method. One is product coordinate based method. In this, they place the initial wave packet near the origin, and then they only deal the product channel. They don't consider
the reactant, what happening in the reactant, and another is reactant product decoupling. In this method, they decompose the reactant and product channels, and then only perform calculation in the product region. There are some limitation on this. Then this RCB method, this method is very good to deal all the problems that previous method have, but the limitation is that it requires high computational cost and dense gridding for the wave packet movement. Then the most recently, we have proposed the interaction asymptotic region decomposition method. This method is like we compose the whole reaction path into two coordinate system. One is Jacobi coordinate system, the other is hyperspherical coordinate system. So to reduce the computational cost, this method is proposed, but actually this method has a stability problem. So looking at this method, there is a motivation that how to tackle the problem, how to tackle the problem when the reaction happens. One, computational cost should be low. Number two is that whether that reaction is channels are stable or not. So here's the IRD method. In this method, actually, the internal coordinate system is taken as the hyperspherical coordinate, and the end channel is taken as Jacobi coordinate. And we join this region by overlapping. So the values of wave, some values of the wave. Yeah. सर आपकी स्लाइड्स मेरे ख्याल में मूव नहीं हो रही अभी भी. ये थर्ड स्लाइड शो हो रही है रिसर्च बैकग्राउंड. Which slide? सर हमें तो ये रिसर्च बैकग्राउंड इशू हो रही है जो थर्ड स्लाइड है आपकी. थर्ड नहीं है मेरे ख्याल. अभी ये मूव हो गई है. अभी जो हमें शो हो रही है वो कोऑर्डिनेट्स प्रॉब्लम एंड पॉसिबल मेथोडोलॉजीज, ये भी शायद तभी मूव हुई है. हाँ, ये ठीक है. हाँ, ये यहीं पे था मैं. ठीक है सर. ओके. सो यहाँ से आके ये जिसे कहते हैं ना कोऑर्डिनेट प्रॉब्लम, ये मोटिवेशन थी कि किसी तरह कोऑर्डिनेट का जो मसला है उसको सॉल्व किया जाए और एक ऐसा मेथड बनाया जाए जिसके अंदर कोई इशू ना हो, जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट को भी कम करे, और हम किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन डील करना चाहें तो वो उससे डील कर सकें. तो उसके लिए मतलब ये तो पहला हो गया. उसके लिए जो हमारा रिसर्च वर्क था, तो उसका जो मेन पर्पस था वो था हाइपरस्फेरिकल कोऑर्डिनेट लेके. अब हाइपरस्फेरिकल कोऑर्डिनेट का मकसद क्या होता है कि इसमें जितने भी प्रोडक्ट चैनल हैं, अगर शुरू की फिगर में देखें तो आपने देखा होगा कि ए प्लस बी सी वो एक ही चैनल में जा रहे हैं और आ रहे हैं और अलग अलग उनके प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं. तो उस वक्त जैकोबी कोऑर्डिनेट प्रपोज किए गए थे. तो फिर हाइपरस्फेरिकल कोऑर्डिनेट प्रपोज किए गए. बेसिकली ये स्फीयर की फॉर्म में डील करते हैं जहां पे रिएक्शन हर साइड पे हर तरह का प्रोडक्ट मिल जाता है. तो इसमें एक सिंगल प्रोपागेशन से हमारे पास क्या हो जाता है, पूरे के पूरे जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, अगर वो किसी मॉलिक्यूल के एटम जो डिसोसिएट भी हो रहे हैं, वो सारे का सारा पता चलता है. सो हाइपरस्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज करने का पर्पस यही था कि एक तो कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास पूरे स्पेस की मिल जाती थी और वो डबल होती थी. यानी हर एक का आप यूं कह लें कि एक सर्कल के अंदर ना आपने 6 चैनल बना के सारी की सारी फिगर को डिटरमिन कर लेते थे. ये कंटूर प्लॉट शो किया गया कि जिसमें बताया गया है कि वेव पैकेट जैसे जैसे मूव कर रहा है हर डिफरेंट चैनल में, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसके जा रहे हैं. यानी एक ए प्लस बी सी है तो उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अगर वो नहीं भी हो रहा तो वो भी स्टेट हमें पता चल जाएगी. और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये व्हाइट वाला रीजन ये हाई पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है, और यहाँ पे ये एंड वाला जिसके दरमियान ये वेव पैकेट मूव करता जा रहा है, ये बता रहा है लो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हाई काइनेटिक एनर्जी. हेलो. ओके. सो द पर्पस इज, अब इसमें क्या है, हम अगर ये वाले एक्स्ट्रा ग्रिडिंग निकाल दें अपनी कैलकुलेशन के दरमियान, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन के दरमियान ये हाई पोटेंशियल एनर्जी को निकाल दें तो हमारी कैलकुलेशन पे काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है. ये इस काम का मेन पर्पस है. सो जो बेंडिंग एंगल्स हैं, दीज आर द बेंडिंग एंगल्स इफ यू सी दिस काई. सो इससे क्या हुआ कि हमारे पास ये वाली हाइपरस्फेरिकल में
इससे क्या होता है कि हमारे पास डेंस ग्रेडिंग इस जगह पे रिक्वायर होती है, बिकॉज द वेव पैकेट नीड टू बी ट्रीटेड वेरी केयरफुली। सो उसके लिए हमें ये एक्स्ट्रा, अगर यहाँ पे डेंस ग्रेड करते हैं तो इस सारे एरिया में भी करते हैं, तो हर जगह पे डेंस ग्रेडिंग हो जाती है। तो इस वजह से ये जो इशू था, इसको सॉल्व करने के लिए हमने फिर मेथड प्रपोज किया। यूजली जब हम चैनल में रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए जैकोबी कोऑर्डिनेट यूज किए जाते हैं किसी भी रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये हैमिल्टोनियन दिया गया है जैकोबी कोऑर्डिनेट में, और उसको हम इस रिलेशन से ट्रांसफॉर्म करके हाइपरस्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ले। सो ये हमारा हैमिल्टोनियन होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, और उस वेव पैकेट का जो सोल्यूशन आता है उससे हमें चाहे उसकी स्पिन, चाहे उसकी रिएक्शन प्रोबेबिलिटी, चाहे प्रोडक्ट स्टेट जो है वो चाहिए होती है, वो डिटरमिन कर लेते हैं, और इसी तरह इस रिलेशन को यूज करके वापस ओरिजिनल जैकोबी कोऑर्डिनेट में जा सकते हैं। मेथडोलॉजी क्या है एपीएच में या हाइपरस्फेरिकल कोऑर्डिनेट में सॉल्व करने की? हम एक वेव पैकेट बनाते हैं जो कि जैकोबी कोऑर्डिनेट में बनाते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे वो ट्रांजिशन रीजन के करीब आता है उसको हाइपरस्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर देते हैं। यानी इनिशियल वेव पैकेट जैकोबी में होगा, लेकिन बाकी सारे का सारा प्रोसेस हाइपरस्फेरिकल कोऑर्डिनेट में होगा। तो इससे क्या होगा, हमें एक वक्त में पूरे के पूरे जो हमारा चैनल, जितने भी चैनल हैं, उसमें रिएक्शन की स्टेट पता चल जाए। जी अस्सलाम वालेकुम उमैर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। उमैर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
सब लोगों को आवाज आ रही है? नो सर। यस सर, आपकी आ रही है। नो सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी सर आ रही है। ओके ये ओके सर ओके अब आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। आई डोंट नो कि क्या इश्यू हुआ था। इसी स्लाइड से था, कहाँ तक आवाज नहीं आई थी? सॉरी। हेलो। सर इससे पिछली स्लाइड थी, वहां से मेरे ख्याल से इंटरप्ट हुआ था। यहाँ से आपको आवाज आना बंद हुई थी? ओके सब। एक्सक्यूज मी सर, स्लाइड नंबर 14 थी। स्लाइड नंबर 14। ओके ओके, थैंक यू। ओके अच्छा, ये मतलब दोनों डिफरेंट मेथड का हाइपरस्फेरिकल कोऑर्डिनेट, जैकोबी कोऑर्डिनेट का आपस में कंपैरिजन है कि वैल्यूएशन ऑपरेटर का जैकोबी कोऑर्डिनेट में काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आपस में कम्यूट नहीं करते, जबकि करते हैं, हाइपरस्फेरिकल में कम्यूट नहीं करते। सो यहाँ पे पर्पस था हाई पोटेंशियल एनर्जी रीजन के जो ग्रिड्स हैं उसको यहाँ से खत्म किया जाए ताकि कंप्यूटेशनल काम जो कॉस्ट है वो कम हो जाए और एफिशिएंसी कैलकुलेशन में आ जाए। जो मतलब 2-3 हफ्ते की कैलकुलेशंस है वो कुछ टाइम में हो जाए। तो उसके लिए जो मेथड प्रपोज किया था उसे हमने नाम दिया स्टेयर शेप ग्रिड मेथड। उसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि हमारे पास एक सिंगल कोऑर्डिनेट में अगर हम नंबर ऑफ ग्रिड्स हों तो वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बनते हैं। जैसे 1000 ग्रिड हम क्या करते हैं, हर डायरेक्शन में एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट है लेते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं तो ये नंबर बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है। तो जो कि जैकोबी कोऑर्डिनेट में यूज किया जाता है, हमने उसी को हाइपरस्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या किया, टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स को 3 डिफरेंट 4-5 जितने रीजन हमें चाहिए हम उसमें डिवाइड कर दें। तो उससे क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ ग्रिड्स हैं हर रीजन में वो कम हो जाएंगे हमें चाहिए जो होंगे, और उससे जो कैलकुलेशन है वो क्या आ जाएगी, उसमें एफिशिएंसी आ जाएगी। सो उसके लिए अगर हम इस फिगर को देखें तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ रीजन पे इसको डिवाइड किया। इसमें 4 स्टेप्स में हमने बनाए और कैलकुलेशन सिर्फ इसी रीजन में की जो अननेसेसरी ग्रिड्स से उनको रिमूव कर दिया। और कैलकुलेशन हमने क्या किया, Cl+H2 रिएक्शन, इसके ऊपर जब मेथड यूज किया तो उससे हमें क्या हुआ, जो रिजल्ट मिले। अब ये रिएक्शन क्यों यूज किया गया, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा लेंथी यानी कि बाउंड्री कंडीशन चाहिए होती है, और जो चैनल होता है, प्रोडक्ट चैनल, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्ट लेने के लिए, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, लार्ज होता है। उसकी उसकी वजह से क्या है कि ये जो रिएक्शन है टिपिकली बहुत ज्यादा टाइम लेता है कैलकुलेशन में। तो जब हमने ये मेथड इस पे अप्लाई किया तो जो मेथड हमने कंस्ट्रक्ट किया स्टेयर शेप एपीएच कोऑर्डिनेट मेथड, इससे क्या हुआ, हमारे पास जो कैलकुलेशन थी वो 3 दिनों में रिजल्ट हमें देना शुरू कर दिया, हालांकि ट्राई एटॉमिक रिएक्शन है। इसी तरह जब हमने सेम रिएक्शन के ऊपर
इसके कन्वर्जेंट पैरामीटर लेके जब इसके ऊपर कैलकुलेशन की तो उसने हमें 10 दिनों में ये कैलकुलेशन परफॉर्म से रिजल्ट मिला। इसी तरह जो IARD मेथड था उससे जो कैलकुलेशन थी उनसे 4 दिनों में हमारे पास रिजल्ट है। और ये HPC पे ये सारी की सारी कैलकुलेशन की गई कैलकुलेशन के दरमियान, और इससे ये पता चला कि जो SSAPH मेथड है, हाइपरस्फेरिकल कोऑर्डिनेट मेथड है, ये बाकियों के मुकाबले में अच्छे रिजल्ट दे रहा है। यानी कंप्यूटेशनल कास्ट हमारी ऑलमोस्ट दूसरे मेथड से बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो ये एक और ये सी रिएक्शन की प्रोडक्ट स्टेट हमने कैलकुलेट की हुई है। डिफरेंट प्रोडक्ट स्टेट हैं, स्टेट 1, स्टेट 3, ये 0 स्टेट है, ये 3rd स्टेट है, ये 6th है, और ये 9th स्टेट है। यानी डिफरेंट एनर्जी दें तो डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और सम टाइम जैकोबी कोऑर्डिनेट बेस्ड मेथड है वो फेलियर की तरफ जा रहा था, और RCB और IARD और जो हमारा मेथड था उससे रिजल्ट क्या आ रहे हैं वो सेम आना शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ पर एक बात कि इस जो मेथड हैं इनका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो हैं उससे किए सारे के सारे कैलकुलेट किए गए, और ये रिएक्शन पहले टाइम इंडिपेंडेंट कैलकुलेशंस के लिए भी किए गए, उसके साथ रिजल्ट कंपेयर करके टाइम डिपेंडेंट का रिजल्ट निकाला गया है। सो हमारा जो SSAPH मेथड है इसने RCB से बेहतर रिजल्ट दिए, चाहे बेशक लॉन्ग अब्जॉर्प्शन पोटेंशियल हो। अब क्योंकि जो RCB मेथड है वो शॉर्ट यानी छोटी बाउंड्री के लिए तो ठीक है, जब बाउंड्री कंडीशंस बहुत ज्यादा लार्ज हो, नंबर ऑफ ग्रिड बहुत ज्यादा हो, तो उससे जो RCB मेथड है उसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। एज यू कैन सी द कैलकुलेशन जो कंप्यूटेशनल टाइम है उनका वो कितना फर्क पड़ता है। इसी तरह फिर ये O+O2 रिएक्शन, जैसे ओजोन का जो रिएक्शन है उसके लिए हमने इस मेथड को अप्लाई किया, और ये बहुत ज्यादा लो है क्लूजन एनर्जी। उसके लिए हमने क्या किया, तीनों मेथड का जब कंपैरिजन किया तो अगेन हमारे पास जो SSAPH मेथड है, हाइपरस्फेरिकल कोऑर्डिनेट मेथड है, ये हमें बेहतर रिजल्ट दे रहा था। और इससे हमारे पास जो रेजोनेंस पीक है, ये रेजोनेंस पीक हमारे पास बेहतर आ रही है यहाँ पर। अब जहां पर ये रेजोनेंस पीक बेहतर नहीं आई, इसकी एक रीजन ये है कि हमने जो ग्रिडिंग है उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस है उसको अपनी मर्जी से डिवाइड किया हुआ है। अगर हम उस क्राइटेरिया को थोड़ा सा और बेहतर कर लें तो जो ये मेथड है यानी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर जो कटिंग लगा के उसकी जो एक स्टेयर सी शेप बनाई है, अगर उसको ठीक किया जाए तो ये रिजल्ट क्या होना शुरू हो जाएंगे, बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ये सारे रिजल्ट हमने उससे कैलकुलेट किए। लेकिन ओवरऑल जो मेथड है इसकी जो एफिशिएंसी है वो RCB से और इंटरेक्शन एसिम्प्टोटिक रीजन डिकम्पोजिशन मेथड से क्या है, बहुत ज्यादा है। ये कंपैरिजन टेबल दिया गया है कि कैसे हमने इस मेथड को सिंपल APH मेथड को और इसको जब स्टेयर शेप APH मेथड को कंपेयर किया तो दोनों मेथड की एफिशिएंसी में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्रिड्स कितने सेव किए जा रहे हैं, ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज हो गई है इन दोनों रिएक्शंस के लिए। सो स्टेयर शेप मेथड जो था इसने क्या किया, इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो एफिशिएंसी है 30% जो है इंप्रूव किया, और दूसरे ने क्या किया, जो Cl+H2 रिएक्शन है उसके लिए 33%। सो हर रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि हर एक के लिए हमें डिफरेंट जो एनर्जी कट है पोटेंशियल एनर्जी सरफेस के ऊपर वो डिफरेंट लेना है। सो सेम नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए मतलब स्टेयर स्टेप्स के लिए हमारे पास जो एफिशिएंसी है उसमें फर्क आएगा, क्योंकि हर एक रिएक्शन के जो नंबर ऑफ ग्रिड्स चाहिए होते हैं वो डिफरेंट होते हैं दूसरे रिएक्शन से। इस तरह जो उसके चैनल की लेंथ चाहिए होती है, जो एंगुलर ग्रिड्स चाहिए होते हैं, वो सारे फर्क आते हैं। सो हमने इससे क्या किया, ये जो मेथड डेवलप किया इससे जो कैलकुलेशंस हैं उस पे, क्वांटम कैलकुलेशन है उस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, इसी को यूज करते हैं। हेलो सर अगेन स्लाइड्स जो है वो स्टक है। कहाँ पे? 14 स्लाइड, हमें 14 स्लाइड्स ही नजर आ रही हैं। अब सही हुआ। मैं तो आगे काफी ज्यादा आगे। अच्छा, ये इसकी कंप्यूटेशनल बताया गया कि कैसे हमने यानी इस मेथड को ना कंप्यूटेशनल कॉस्ट को रिड्यूस किया है, और चैलेंजेस
ये HPC के ऊपर हमने जब इसकी कैलकुलेशन की तो इसमें एक मेथड ने हमें जो हमारा प्रपोज किया वो मेथड था उससे 3 दिन लगे, दूसरा RCB जो मेथड था उससे ऑलमोस्ट 10 डेज, और फिर IARD से उसी रिएक्शन के लिए 4 डेज में कैलकुलेशन हुई हमारे पास। और ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है शियोन प्लेटिनियम 8380 पे की गई HPC। और अगेन ये ग्राफ्स हैं जो इनके कंपैरिजन के लिए आपस में दिए गए, ठीक है। और ये लास्ट में इनका कंपैरिजन टेबल है जहाँ पे एफिशिएंसी को आपस में बताया गया है। दोनों में सिंपल जो हाइपरस्फेरिकल कोऑर्डिनेट हैं और जिससे हमने प्रपोज किया उससे पता चला कि एफिशिएंसी में कितना इंक्रीज आ गया। सो फाइनली ये था कि इससे हमारे पास कंक्लूजन में कि हमने जो मेथड प्रपोज किया रिएक्टिव स्कैटरिंग के लिए, स्टिल स्लाइड्स मूव नहीं हो रही, स्टक कंक्लूजन आई नहीं रहा स्लाइड्स। अब आए, अभी मूव हो रही अभी ओके। सो एक तो ये है कि हमने जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ग्रिड चाहिए होते हैं उसके लिए नंबर ऑफ ग्रिड सेव कर लेते हैं। दूसरा ये है कि हमने कई डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अभी ये स्ट्रेटजी अपनाई है। सो इसी स्ट्रेटजी को अगर हम थीटा डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अपनाएं तो मजीद कंप्यूटेशनल कास्ट कम हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि जैसे इसकी डिग्री ऑफ मतलब नंबर ऑफ ग्रिड्स कम करें तो रिजल्ट डाइवर्ज करना शुरू करते हैं और आपको रिजल्ट ऑलमोस्ट एक दिन बाद जाके पता चलना शुरू होते हैं कि किस तरह के रिजल्ट हैं। सिंपल जो रिएक्शन है उसके ऊपर कैलकुलेशन करें वो तो आपको आ जाती है, लेकिन आपके जो रिएक्शन है जिसको प्रैक्टिकली जो यूज किया जाता है उसके लिए क्या है जी, बहुत ज्यादा मुश्किल है थीटा डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए नंबर ऑफ ग्रिड्स स्टेयर्स के अंदर डिक्रीज करना। सो हमने ये जो मेथड प्रपोज किया इसकी जो कंपैरिजन अगर हम करते हैं इंटरेक्शन एसिम्प्टोटिक रीजन डिकम्पोजिशन मेथड से तो सेम एक्यूरेसी आती है। इस वक्त IARD मेथड को ये हमने जब मेथड प्रपोज IARD भी हमने प्रपोज किया था और ये हम एडिटर्स पिक था जर्नल में। इस मेथड को एज ए स्टैंडर्ड यूज किया जाता है रिएक्शन डायनामिक्स के अंदर। और अभी तक हमने इन सारे के सारे जो मेथड डेवलप किए हैं इसको 3 एटम्स के लिए किया है। 4 एटम के लिए कंप्यूटेशनल कास्ट और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो अभी इनको 4 के लिए नहीं लेके गए। अगर हम उस पर ट्राई करें तो ऑब्वियसली उसमें भी कंप्यूटेशनल कास्ट कम होगी, लेकिन अगेन 4 डायमेंशन में जाने के लिए हमें स्ट्रेटजी को थोड़ा सा और ज्यादा देखना पड़ेगा कि किस तरह हम उसमें रिड्यूस करेंगे, क्योंकि उसमें फिर रोटेशन इन्वॉल्व हो जाती है, वाइब्रेशन इन्वॉल्व हो जाती है, यानी आप यूं कह लें कि रो वाइब्रेनिक कपलिंग इसमें इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से काफी ज्यादा कैलकुलेशन पे फर्क पड़ सकता है। एंड थैंक यू सो मच आप सबकी अटेंशन का, और साथ ही इस बात का कि पता नहीं ऑनलाइन था ये सेमिनार तो इसमें इश्यूज इस तरह के आए। एंड आई अगर आपके कोई क्वेश्चन है इसमें तो काइंडली यू कैन आस्क मी। जी थैंक यू वेरी मच उमैर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 सी। ओके, सो इट वाज एन एक्सीलेंट टॉक। जहाँ तक समझ उसमें ये है कि आपने एक नई न्यूमेरिकल टेक्निक इंट्रोड्यूस की which will help people to understand the reactions in a efficient way. तो यस अभी सब यंग लोग हैं जो अपनी अपनी रिसर्च डायरेक्शन को चूज कर रहे हैं और आगे जाना भी चाह रहे हैं। तो थोड़ा बता दें कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या जब भी कोई प्रॉब्लम एट हैंड होती है तो क्या क्या चीज़ें माइंड में रखते हैं और क्या एम होता है कि क्या चीज़ अचीव की जाए। तो जो डिफरेंट डिफ़िकल्टीज आपने फेस की हैं तो इन यंग लोगों को बताएं कि क्या क्या फेस किया और कैसे कैसे रिजॉल्व किया और कितना इस पे एफर्ट लगी आपकी, ये सब कुछ ताकि इन बच्चों को पता चले। थैंक यू। एक्चुअली आप मैथमेटिक्स से जब किसी दूसरी फील्ड को साथ जोड़ते हैं ना तो उसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जैसे मतलब ये काम किया था तो इनिशियली जब आप आगे रिसर्च का काम यही होता है कि आपने जो बैचलर्स में सोचा है उसी को फिर आपने मास्टर्स में लेके जाना है और उसी काम को आपने फिर PhD में, ताकि जैसे ही आप कोई काम करें उसमें एक्सपर्ट हो जाए।
ऐसा काम ना करें कि बैचलर्स में आपने कुछ और सोचा, मास्टर्स आप करना चाह रहे हैं उसमें कोई और काम करना चाह रहे हैं, तो पीएचडी में कोई और काम करना चाह रहे हैं, तो बहुत से इश्यूज आएंगे। जो मतलब मेरे साथ तो ये हुआ था कि बैचलर्स पहले अप्लाइड मैथ्स में, फिर कंप्यूटेशनल में, फिर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में। तो इन चीज़ों को आप सब ने ना अभी जो डिसीजन लें, ये आपकी आने वाली ज़िंदगी सारी इसी से रिलेटेड है। कोशिश करें कि आने वाले वक्त के लिए आपको जितना भी एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करें, उनके साथ मिलें, उनसे पूछें वो काम कैसा कर रहे हैं, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर आप अपनी फील्ड मैथमेटिक्स को कैसे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में जहां पे भी एक्सपेरिमेंटल काम होता है वो सारे के सारे थियोरेटिकल काम को साथ लेके जाते हैं। हर दुनिया में हर किसी को मैथमेटिक्स का बंदा चाहिए, जहां पे आपको मतलब न्यूमेरिकल मेथड अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप रिसेंटली देखें, मोस्ट रिसेंटली, तो इस वक्त टोपोलॉजिकल डेटा एनालिसिस जो है इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है कैंसर डिटेक्शन में। तो आप ये कहना कि मैथमेटिक्स प्योर मैथ्स है, अप्लाइड मैथ्स है, ये फर्क नहीं पड़ता। उस फील्ड की एप्लीकेशन आते हुए टाइम लगता है। तो आपको यही सजेशन है, प्रोग्रामिंग अच्छी तरह सीख लें, ठीक है, उस पर काम करें। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखें। अगर आप लेटेस्ट पाइथन पे रहते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके आने वाले कल के लिए ना बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। और दूसरी बात कि एज ए बैचलर स्टूडेंट्स अपने आप को, अपना माइंड क्लियर कर लें कि अगले 10 साल बाद आपने अपने आप को कहाँ पे देखना है। किसी डाउट में रहने की जरूरत नहीं है। स्कॉलरशिप्स की पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, चाइना हो गया, जापान हो गया, यूएसए, यूके, सिर्फ वो स्पेसिफिक नहीं होती, हर तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। आप किसी प्रोजेक्ट में भी जा सकते हैं, कंपनीज की स्कॉलरशिप्स होती है, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स होती हैं, प्रोविंस की स्कॉलरशिप्स होती हैं, यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो कोशिश करें जो काम करें खुद करें। और आजकल वो जो चैट जीपीटी या इस तरह का है, ठीक है, वो एक टूल है, उस टूल को अपनी जिंदगी ना बनाएं, उसको यूज जरूर करें, लेकिन हर कुछ उसमें नहीं है, क्योंकि इंसान और उसकी एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा फर्क है। तो बेहतर है आप ये थोड़े से ना, जो काम आपने सीखा है, जितना भी बैचलर्स में सीखा है, यही आगे लेके चलें। और जो अभी आपने प्रोजेक्ट जिसने करना है, चाहे एमएस का कर रहे हैं कोई, चाहे बैचलर्स का कर रहे हैं, उन्हें चाहिए उसी फील्ड को आगे लेके जाएं। और जो आपके लोग बाहर जानने वाले हैं, कोई भी पाकिस्तानी है, उनसे राब्ता करें, उनसे पूछें। और आपस में यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्स में, तो कंप्यूटेशनल और अप्लाइड केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछें वो कैसे जो है केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स को देखते हैं। बायो वाले हैं उनके साथ आप देखें, और फिजिक्स वाले हैं वो कैसे देखते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप जब बाहर आगे अगर पीएचडी करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए बाहर जाएंगे, तो वहां पर आपने उन लोगों के काम को करना है, और वो काम वही सिलेक्ट करें जो आपको अच्छा लगता है, जिसे आप इंजॉय करते हैं। बाकी मुश्किलें जरूर आती हैं, डिफिकल्ट एक फेस होता है 1-1.5 साल का पीएचडी के अंदर। उसके बाद सारा आप आहिस्ता आहिस्ता यूज टू होना शुरू हो जाते हैं। जी सर।